welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic, that is a tale of three intersecting lines. Means we are talking about triangles. Okay, so let's see what we are going to cover here. So after studying this chapter, you will learn about triangle, then side and angle opposite to each other. Okay, classification of triangles, then medians of triangle, attitude of triangle, exterior angle of a triangle, angles and property of a triangle, equilateral triangle, property of lengths of the sides of the triangle, then Pythagoras property in a right angle triangle. Okay, चलिए तो start करते हैं हमारा topic triangle. So here we are having triangle, that is a triangle in a plane is a plane and a closed figure bounded by three straight line segments in the adjoining figure. The three line segments AB, BC, and CA are called sides of a triangle, just like AB, BC, C. Okay, so next here we are having three vertices, just like vertex A, vertex B, and vertex C. And then we are having three angles, just like angle A, angle B, and angle C. सो इनकी नेमिंग भी हम अलग अलग करते हैं, जस्ट लाइक एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी सी ए. ओके, तो चलिए अब उसके बाद एक स्टेटमेंट और है, दैट इज अ ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, दैट इज दिस ट्रायंगल वी कॉल इट डेल्टा. ओके, next here we are having a side and angle opposite to each other. That is, each side is opposite to any angle and each angle is opposite to any side. That is, side AB is opposite to angle C or angle BCA. Then we are having side AC which is opposite to angle B or angle ABC. फिर देखिए अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं तो दिस इज ABC और यहाँ पे देखते हैं साइड BC क्या है, ये रही हमारी साइड BC एंड इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, दिस वन. ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर इनको देखते हैं. नेक्स्ट here we are having, that is classification of triangles. So triangles can be classified based on side and angles. अगर हम साइड के भी पे देखते हैं, so there is scalene triangle where no two sides are equal. Then we are having isosceles triangle in which two sides are equal, and then we are having equilateral triangle and all three sides are equal. Okay, then we have triangles based on angles. Okay, so we are having acute angle triangle, means all angles are acute, means smaller than 90 degree. Next we are having obtuse angle triangle. One of the angle is obtuse, means greater than 90 degree but less than 180 degree. And then we are having right angle triangle. One of the angles is a right angle. So यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा. Here we are having medians of triangle. अगर हम medians of triangles की बात करें, so we are having a triangle that is ABC और वहां से हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक AD. तो मीडियन क्या करेगी, BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और D क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, मिड पॉइंट. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं. Similarly, we can join the midpoints of the sides AB, AC, and respectively opposite vertex in all. And the triangle has three medians. अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक मीडियन बनाता हूँ, यहाँ से बनाता हूँ, यहाँ से बनाता हूँ, ठीक है, तो वो क्या होंगे, हमारे मीडियन फॉर्म हो गई. अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे, that is, a median does not lie wholly in the interior of the triangle. Its two ends lie on the triangle itself, vertex and the midpoint of the opposite side. तो ये हमेशा क्या लाई करेंगे, अपोजिट साइड पर मिड पॉइंट लाई करते हैं, ठीक है. The third point we are having, that is all median of a triangle meet at a common point that is called centroid. ये G point जो है ये हमारा क्या होता है, centroid. It is usually denoted by letter G. And the property of median at on path or passing through the same point is called concurrence, or the median are called concurrent. तो इसको हम concurrent भी बोलते हैं. उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी बात और है जिसको हम प्रॉपर्टी जरा लेते हैं, that is the centroid of a triangle divides each one of the median
इन द रेशियो 2:1, दैट इज AG और GD। अब जैसे AG एंड GD का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1, मीन्स वो हर मीडियन के लिए होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें DG एंड GE, इनका रेशियो भी क्या होगा, 2:1। So now here we are having properties of median. Okay, so the median of an equilateral triangle are equal in length. क्योंकि उसमें साइड्स इक्वल है तो उसका मतलब वहां पे मीडियन की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल। द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। तो जो हमारी मीडियन होगी वो हमेशा क्या होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर होगी अपने साइड, अपोजिट साइड से। द मीडियन ऑफ टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो जिस जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो मीडियंस होती है वो भी क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी। एंड द मीडियन ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो जो मीडियन होती है, ठीक है, वो एक्चुअली परपेंडिकुलर भी होगी किसके, आइसोसेलेस, सॉरी ये वाला कट कर देना। ओके, द मीडियन टू द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो भी मीडियन कैरी करेगी वो परपेंडिकुलर भी होगी उसके अपोजिट बेस। नेक्स्ट वी आर हैविंग एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो जो परपेंडिकुलर हाइट होती है ट्राइंगल में वो क्या होते हैं, हमारे एल्टीट्यूड। ओके, so let's see. So here we are having a line segment of the height can be drawn from A to BC, and many line segments can be drawn from A to BC, but the line segment perpendicular to BC will exactly shows the height of the triangle. तो हमने यहाँ से AD परपेंडिकुलर बनाया BC की, तो वो क्या शो करेगा, उसकी हाइट। नेक्स्ट इज द ट्राइंगल हैज 3 एल्टीट्यूड्स, तो 3 साइड्स है, तो उन्हीं के बिहाफ पे हम क्या देखेंगे, अलग अलग एल्टीट्यूड्स। Next, we are having an altitude has one end point at the vertex of the triangle and another on the opposite side. So, altitude will not always lie in the interior of a triangle or on its boundary. तो अलग अलग भी lie कर सकते हैं, इंटीरियर भी हो सकता है, बाउंड्री पर भी हो सकता है, एक्सटीरियर भी हो सकता है। Okay, in an acute angle triangle, every triangle will lie in its interior on its boundary. तो अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो इंटीरियर लाई करेगा। और राइट एंगल ट्राइंगल हैज टू ऑफ इट्स एल्टीट्यूड एज टू ऑफ इट्स साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल। तो अगर राइट एंगल फॉर्म करते हैं तो उसके साइड्स पे लाई करता है हमारा एल्टीट्यूड। एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हैज टू ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स ऑन टू ऑफ इट्स साइड्स। तो 2 साइड्स पे लाई करेगा, ठीक है। अगर उसको प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के एक्सटीरियर में भी लाई करेगा। चलिए, अब जब भी हमारे एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को मीट करते हैं, तीनों एल्टीट्यूड, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। जैसे हमारे पास मीडियन, अगर हमारे ट्राइंगल्स के तीनों मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा सेंट्रोइड। तो ऐसे ही हमारा एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमारा ऑर्थो सेंटर। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। दैट इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। राइट एंगल की बात करें, दैट इज लाई एट द वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल। एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की बात करें, लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशंस थी। अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एल्टीट्यूड्स। यहाँ पे देखेंगे, द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ, ओके। द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, ओके। तो वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल साइड्स में इक्वली डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल पे जो एल्टीट्यूड होता है वो भी क्या होता है, इक्वल इन लेंथ होगा। नेक्स्ट इज द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस। तो एल्टीट्यूड होगा बेस आइसोसेलेस ट्राइंगल का, वो भी उसे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग रिलेशंस बिटवीन द मीडियन एंड द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सो in equilateral triangle the median and altitudes are same, therefore the centroid and orthocenter coincide. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑर्थोसेंटर और सेंट्रोइड दोनों सेम पॉइंट पर लाई करेंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ओनली द मीडियन ऑफ द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ द बेस आर द सेम। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो मीडियन होगा और एल्टीट्यूड होगा वो दोनों सेम लाई करेंगे, पर बेस क्या होगा, हेयर बेस मींस द अनइक्वल साइड होने चाहिए, ठीक है।
Next is the rest median of an isosceles triangle and all the medians of a scalene triangle have no relation. तो median of an isosceles triangle and all medians of scalene triangle, तो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा. चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं. So यहाँ पे बोला गया है in which kind of triangle two of its altitudes lie in the exterior of the triangle. So ऐसा कौन सा ट्राइंगल था हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ओके, तो चलिए यहाँ पे ट्राइंगल देखते हैं. ये हमारा क्या हो गया? बेस. ये हमारा क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल. अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर होगा यहाँ से, एक ये मान लेते हैं. ठीक है, इसका देखेंगे तो ये यहाँ कहीं लाई करेगा. ठीक है, ऐसे ही इसका भी लाई करेगा जो हाइट होगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जाएंगे. ठीक है, ओके. इस टाइप से आप इनको देख सकते. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. कैन द एल्टीट्यूड्स एंड मीडियन ऑफ ए बी द सेम फॉर अ ट्राइंगल? बिल्कुल हो सकते हैं. फाइंड आउट एंड ड्रॉ अ रफ स्केच. तो यहाँ पे आता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे जो एल्टीट्यूड्स होते हैं और जो मीडियंस होते हैं वो सेम लाई करते हैं. जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर एक बनाया 10 बार. ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका क्या हो गया? एल्टीट्यूड. और यही इसको क्या कर रहा है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ए बी सी डी. ओके, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं डी पार्ट. देखते हैं. अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द बेस ऑफ द अपोजिट साइड. ओके, तो चलिए बाकी सारी प्रॉपर्टीज आप लोग इजीली कर सकते हैं. तो अब हम आगे चलते हैं. सो वी आर हैविंग एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. तो यहाँ पे जो हमें प्रॉपर्टी देखने के लिए मिली है, जैसे ट्राइंगल ए बी सी है और यहाँ पे हमने क्या करा? एक लाइन एक्सटेंड कर दी. ओके, तो यहाँ पर ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है. मींस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल बी ए सी एंड ए बी सी. ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आते हैं. ड्रॉ द ट्राइंगल ए बी सी एंड प्रोड्यूस्ड. तो वी आर हैविंग ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड प्रोड्यूस बी सी टू डी. देन एंगल ए सी डी does form his exterior angle. So ABC at C with respect to angle ABC is called interior angles of a triangle. So here we are having exterior angle property. Again, the exterior angle property of a triangle says. So here we are having exterior angle property in which the exterior angle equals to the sum of opposite to interior angles. Okay, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं. That is number of exterior angles. तो हम कितने फॉर्म कर सकते हैं? अगर हम यहाँ से एक्सटेंड करें तो जस्ट लाइक दिस इज 1 2 3 4 5 6. सो वी आर हैविंग टोटल 6 एक्सटीरियर एंगल्स. ओके, चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर और क्या गिवन है. तो अब कुछ ज्यादा नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन है. तो लेट्स सी. हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 11.2 एंड यहाँ पर बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में, दैट इज इन फिगर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, तो चलिए यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. सो यहाँ पर आता है हमारे पास दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी में हमें क्या बताया जाता है कि जो आपके जो तीन एंगल हैं जस्ट लाइक ए बी सी, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. सो हियर वी आर हैविंग दैट इज 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. चलिए बहुत बढ़िया. इनको
ऐड करेंगे सो वी आर हैविंग 130 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो अगर सॉल्व करेंगे सो वी आर हैविंग x equals to 50 degree as an answer. Okay, sorry, this is y. Now we have to find out the value of x. तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी. ओके, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा एक्सट्रीम एंगल होगा वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा. Okay, so here we are having angle x plus equals to 90 degree plus angle y. So यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल y कितने का है हमारे पास 50 डिग्री. तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं. सो दिस इज एंगल x. सो एंगल x इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 140 डिग्री. दैट इज योर आंसर. ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं. तो यहाँ पर आप इजिली x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर ई. ओके, सो देखिए ये हमारा एक्सट्रीम एंगल है, ये अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा. सो वी कैन से दैट 95 डिग्री इक्वल्स टू दैट इज 40 डिग्री प्लस एंगल x. तो इधर इसको माइनस करेंगे सो दिस इज 95 minus 40 degree equals to angle x. Here we are having 55 degree equals to angle x. So this is our answer. Okay, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो यहाँ पर बोलेगा क्वेश्चन नंबर 6 में कैन द एक्सट्रीम एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी अ स्ट्रेट एंगल मींस ऑफ 180 डिग्री का पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं. अगर ट्राइंगल के अपोजिट टू इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो थर्ड एंगल का सम कितना लेंगे हम? So it is no, it is not possible. So next here we are having angle sum property. तो हमें बताया जाता है कि हमारे एंगल्स के 3 एंगल्स का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज 180 डिग्री. ओके, तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं. तो बस अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, वो करते हैं. सो लेट्स सी आर एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. ओके, सो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं बी पार्ट. सो हियर वी आर हैविंग angle y equals to that is 85 degree because they are vertically opposite angles. Okay, then we have to find out the angle x. So अब हम यहाँ पे यूज करेंगे angle sum property. Okay, तो यहाँ पर हम देखेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, तो चलिए यहाँ पे करते हैं. सो हमारे पास एंगल y था 85 डिग्री. सो दिस इज एंगल x प्लस दिस इज 85 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. हम भी करेंगे दैट इज एंगल x 80 120 130. सो दिस इज 130 डिग्री इक्वल्स टू 180. सो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज एंगल x इक्वल्स टू, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, दैट इज 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री. सो एंगल x इक्वल्स टू 50 डिग्री. So this is our answer. Next आता है क्वेश्चन नंबर 2. Is it possible to have a triangle with two right angles? Possible है क्या? This is no. क्योंकि अगर दोनों ही राइट एंगल हो जाएंगे तो थर्ड एंगल कितने होगा 0 डिग्री का, फिर तो ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगा. सो टू एक्यूट एंगल्स पॉसिबल हो सकते हैं, यस. ठीक है, तो इसी टाइप से आप सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे. आगे देखते हैं इसमें.
तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. तो here we are in question number 6. If the angles of a triangle are in the ratio 1:2:3, determine the three angles. तो देखो जब भी रेशियो में होते हैं तो हम इनके एंगल्स को वेरिएबल के साथ यूज करते हैं. कैसे? चलो देखते हैं. लेट द एंगल्स बी, 1 के बाद क्या आता है? x, 1x, then 2x and 3x. So here we are having angle sum property. ओके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी में देखेंगे यहाँ पर हमारे पास आएगा x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो चलिए 5 प्लस 1 दिस इज 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? दैट इज 180 डिग्री divided by 6. So the value of x is 30 degree. Okay, तो हमारे पास एंगल्स थे 1, 2, 3x. So first angle that is 30 degree. The second angle था हमारे पास that is 2x equals to 60 degree. Now we are having third angle that is of 3x equals to 90 degree. Okay, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व. सो आगे देखते हैं. So here we are having an equilateral triangle. So इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हो. जो तीनों एंगल हैं वो कितने के होते हैं? 60 डिग्री, जस्ट लाइक दिस वन. ओके, तो थोड़ा आगे चलते हैं. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम यहाँ पे देखेंगे एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R. ओके, सो एंगल Q एंड एंगल R द इक्वल एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड दैट इज P R एंड PQ. अब देखो ये जो PQ और PR इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना. चलिए, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. सो देखते हैं यहाँ पे क्या बोलेंगे. ओके, सो इफ वी आर हैविंग अ ट्राइंगल ABC, तो हमेशा ही होगा कि the sum of two sides of a triangle is greater than the third side, just like BA plus AC is greater than BC. और हम कह सकते हैं BA plus AC is greater than BC. तो हमेशा ये क्या होंगे? थर्ड साइड से बड़े ही होंगे इन दोनों का सम. अगर नहीं हो पाता तो इक्वल भी होता है या उससे छोटा होता है तो हम क्या मानेंगे कि वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता. सो इसलिए बोले जाता है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is greater than the length of the third side. Okay, so this is called the triangle inequality property. चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. So here we are having an exercise that is 11.4 and यहाँ पर हमसे बोला गया है. तो यहाँ से क्वेश्चन पे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एंगल x एंड y. तो चलिए इसको देखते हैं. अब देखिए एंगल x हमें चाहिए. अब ये दोनों साइड्स क्या है? इक्वल है. तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये 130 डिग्री है, तो एंगल नेमिंग कर लेते हैं ABC. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एंगल होगा वो कितने का? ये इसको मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं यहाँ पर E. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर. सो सबसे पहले यहाँ पर आता है. सो एंगल ABC प्लस एंगल CBD इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर. ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वैल्यूज ABC. तो फाइंड आउट करना है एंगल CBD कितना हमारे पास? दैट इज 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री.
चलिए, तो ये प्लस में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, दैट इज 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो दैट इज एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 50 डिग्री. ओके, सो ए बी सी इज 50, क्योंकि आइसोस ट्रायंगल, तो ये ए सी बी भी कितना होगा, 50 डिग्री. तो हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 50 डिग्री, क्योंकि ये क्या है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, नाउ अब हमें क्या चाहिए, एंगल एक्स चाहिए और एंगल वाई चाहिए. अब देखिए एंगल वाई क्या होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये भी कितने का होगा, एंगल वाई इक्वल्स टू 130 डिग्री. ठीक है, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग लीनियर पेयर. ठीक है, ओके, तो चलिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ. देखिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री. ओके, और वो क्यों होगा, क्योंकि हम फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे लीनियर पेयर. तो ए सी बी कितना था हमारा, 50 डिग्री. सो एंगल वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल वाई कितना आ गया, 130 डिग्री. ओके, तो वाई आ गया. अब हमें क्या चाहिए, एंगल एक्स. तो एंगल एक्स और एंगल बी मिलके क्या बनाएंगे, एक्सटीरियर एंगल. तो हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो यहाँ पाएगा हमारे पास एंगल वाई प्लस, सॉरी, एंगल वाई तो एक्सटीरियर एंगल है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल एक्स प्लस एंगल ए बी सी. ठीक है, तो एंगल वाई तो हमारा 130 डिग्री है, एंगल एक्स हमें निकालना है और ये कितना था, 50 डिग्री. तो इधर माइनस करेंगे, so here we are having 80 degree equals to angle, तो हमारा x आ गया 80 डिग्री और y आ गया 130 डिग्री. सिंपल था, है ना. चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6. तो हमें यहाँ बताएं, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं दिस वन, ए पार्ट. ओके, तो चलिए मान लेते हैं दिस इज ए बी, दिस इज बी सी एंड दिस इज सी ए. तो यहाँ पे कंडीशन क्या होंगी, जस्ट लाइक ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी. सेकेंड कंडीशन क्या होगी हमारे पास, ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी. देन थर्ड होगी ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी. तो चलिए चेक करते हैं, वन बाय वन प्रॉपर्टीज प्लेस करेंगे और देखेंगे. तो यहाँ पर ए बी कितना है, दिस इज 8, बी सी कितना है हमारा 5 एंड ए सी हमारा 3. ऐड करेंगे, सो 8 प्लस 5 दैट इज 13, तो ये ग्रेटर है, तो ये फुलफिल हो गए. चलिए अब सेकंड अप्लाई करते हैं. तो अब ए सी कितना था, दस लाइक 3, ए बी कितना था 8 और बी सी कितना था 5. 8 प्लस 5 दैट इज 11 इज ग्रेटर देन 5, तो ये भी सिचुएशन सही हो गई. ओके, तो चलिए अब थर्ड देखते हैं दिस वन. तो ए सी कितना है हमारे पास 3, बी सी कितना है हमारे पास 5 और ए बी कितना है हमारा 8. तो ऐड करते तो इक्वल आ गया, तो ये थर्ड सिचुएशन फुलफिल नहीं हो पाई. तो इसका मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं, सॉरी, ओके, सेकंड सिचुएशन फुलफिल हो गई बट थर्ड नहीं हो पाई, इसीलिए ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता. ओके, सो वी कैन से दैट नो ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय दीस थ्री सेगमेंट्स. ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं. तो नेक्स्ट हियर वी आर पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल.
सो चलिए यहाँ पे देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है, जो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और होता है, दैट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो जिसमें आपके पास 3 नंबर्स की सीरीज होगी, जस्ट लाइक 3 4 5, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 16, 5 12 13 सेम, 8 15 17 7 24 25 12 35 37। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को देखेंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते, चलिए यहाँ पर आ गए हम अपनी एक्सरसाइज दैट इज 11.5 पर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। सो हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 11.5. So here we are having by using Pythagoras theorem. ओके, तो देखिए जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं, और जो बाकी दो साइड्स हैं उनमें से एक बेस हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज इज 6 स्क्वायर, बेस है हमारे पास 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 4 स्क्वायर। अगर ये इक्वल आ जाता है दोनों साइड तो हम ये मान लेंगे कि ट्राइंगल की साइड से वो राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज नॉट। चलिए, सो दिस इज 6 इज द थर्ड इज 6 इक्वल्स टू 3 6 9 प्लस 4 4 इज 16। ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 25, ये है थर्ड इज 6 इक्वल आ रहा है 9। सो इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, नॉट अ राइट ट्राइंगल। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। So here we are having a ladder is placed in such a way that its foot is at a distance of 5 meter from the wall and its top reaches a window is 12 meter. अब सपोज करिए ये वॉल है, ठीक है, और यहाँ पर एक विंडो बनी हुई है जस्ट लाइक दिस। ओके, तो हम एक लेडर लगाना है जो हमने यहाँ से लगाया है ऐसे चढ़ के जाने के लिए। तो हम ऐसे यहाँ पर चढ़ेंगे और इस विंडो पर जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला a ladder is placed in such a way that the foot is at a distance of 5 meter from the wall. सही, जो फुट है वॉल से कितना है 5 मीटर है। ओके, एंड इट्स टॉप रीचेस अ विंडो 12 मीटर अबव। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, जस्ट लाइक 12 मीटर। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लेडर। तो आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना, तो इसको मान लेते हैं एक्स। ओके, चलिए अब इसको साइड में कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको करते हैं जस्ट लाइक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो हमें निकालना है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर। तो बेस कितना हमारा 5 एंड परपेंडिकुलर है हमारा 12 स्क्वायर। सो दिस इज 5 5 25 एंड दिस इज 144। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो दैट इज 169। सो एक्स इक्वल्स टू 13। सो ये हो जाएगी 13 मीटर आंसर। क्लियर। सो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।